Hello students, welcome to all in your class. Dear students, as you know, we are reading the second chapter of the history, and in this chapter we have already covered the First World War and its impression on the Indian peoples, and about Mahatma Gandhi and his famous movement Satyagraha. Means we have covered the topic of the First World War and the idea of the Satyagraha. Today we will start a new topic, Rowlatt Act. Dear students, seeing the popularity of Mahatma Gandhi and the success of the Satyagraha movement, the Britishers were afraid. They were feared that if the popularity of Mahatma Gandhi and the success of the Satyagraha movement will we continue in the same way, then in some days the Indian peoples may be forced them to leave the India, and in this way they will lost to their empire from India. उनको इस बात का डर था कि अगर गांधी की पॉपुलैरिटी इंडिया में ऐसे ही बढ़ती गई और इसी प्रकार से वो लोग अपनी डिमांड को बढ़ाते चले गए, सत्याग्रह मूवमेंट अगर ऐसे ही सफल होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ेगा. सो दे वांटेड टू कंट्रोल द पॉपुलैरिटी ऑफ द महात्मा गांधी एंड they also wanted to prevent the success of the Satyagraha movement. For that they have introduced an act which is known as the Rowlatt Act. What is Rowlatt Act? So dear students, an act which gave the enormous power to the British government to repress the political activities of the Indian political leader allowed detention of political prisoners for 2 years without trial. Dear students, according to this act, the British government can arrest to the Indian leaders and they can kept them in jail, in prison for 2 years without trial. Without trial means उनके ऊपर कोई मुकदमा, कोई सुनवाई नहीं होगी. Actually, according to the law, every peoples have to represent in front of the magistrate within 24 hours of arresting. बच्चों, अगर कोई किसी को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है
ताकि वो भी अपनी बात रख सके। बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the British government had not allowed to the Indian peoples for such kind of the activities, for such kind of the trial. उन्होंने ट्रायल के लिए कुछ नहीं रखा था। एक्चुअली दिस लॉ वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश इम्पीरियल, ब्रिटिश जो इम्पीरियल थी उनकी, जिससे हमारे यहाँ संसद होती है, उनके द्वारा पास किया गया था। द इंडियन मेंबर्स of the British imperial law were opposing, but this movement had passed by the Britishers. यद्यपि जो इंडियन मेंबर्स थे उसके, वो लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस कानून को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। सो गांधी जी रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ जस्टिस। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो है वो जस्टिस नहीं है, यह न्याय नहीं है। सो ही स्टार्टेड द रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट। उन्होंने क्या कर दिया, रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। यानी इसको अपोज करने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट। आपकी बुक में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स दिया होगा, तो उसको अपना कंसीडर करिएगा। इसे हम क्या जानते हैं, रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट मीन्स टू अपोज द रॉलेट एक्ट। गांधी जी हैड स्टार्टेड द रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट बिकॉज ही रियलाइज दैट द रॉलेट एक्ट इज इलीगल, इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द इंडियन पीपल्स, इट इज़ नॉट अ जस्टिस, it is totally based on injustice, and he find out that to start the satyagrah movement the reason is true and they were going to struggle against the injustice. So they collected the peoples and advised them and inspired them to start the rowlatt satyagrah movement, which was on the base of non-violence according to महात्मा गांधी। मीन्स महात्मा गांधी चाहते थे कि ये जो ये मूवमेंट हो वो नॉन वायलेंस पे बेस्ड हो, अहिंसा पे बेस्ड हो, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया। आगे चल करके हम उसको देखेंगे। ही डिसाइडेड दैट ऑन 6 अप्रैल 1919 they will oppose the Rowlatt Act by the several activities such as by organizing the rallies, by strike, by hartal. So the many peoples on the 6th April 1919 came on strike. They have taken the part into the peaceful procession. The railway workers and the factory workers have leave their jobs, means they joined the hartal. Seeing this, the British government became afraid and he began to arrest the political leaders. एक स्टोरी है, कहानी की तरह से सारी बातें चलेंगी। आपको पहले बता दिया गया रॉलेट एक्ट क्यों पास किया गया। तो रॉलेट एक्ट किस लिए पास किया गया, टू प्रिवेंट द पॉपुलरिटी ऑफ महात्मा गांधी एंड द सक्सेस ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट। अब रॉलेट एक्ट में कमियां क्या थी, रॉलेट एक्ट था क्या, उसको आपको बता दिया गया कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन बी अरेस्ट टू द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और द इंडियन पीपल्स हु आर लुकिंग विथ सस्पेंस, जिनके ऊपर उन्हें संदेह था, उसे वो गिरफ्तार कर सकते थे। एंड केप्ट देम इन प्रिजन फॉर 2 years विदाउट ट्रायल, और बिना किसी सुनवाई के, बिना उनका पक्ष सुने हुए उन्हें 2 साल तक जेल में रख सकते थे। गांधी जी हैड रियलाइज दैट इट वाज अगेंस्ट जस्टिस एंड टू स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट द रीजन इज ट्रू, सो ही स्टार्टेड अ रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट and decided that on 6th April the peoples will start to this movement with the strike into the factories, with the hartal in railway works, and they will organize the
peaceful procession and the rallies. Seeing this, the British government became afraid. They have imagined the situations that if they will continue to do this, they may be lost a huge economic downfall. उनको लगने लगा कि वो एक बहुत बड़ी उनको आर्थिक क्षति होगी, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होगा, क्योंकि रेलवे वगैरह बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी. So they wanted to control this movement at any rate. For that they started to arrest the Indian leaders, especially the local leaders. Means this movement was mainly started into the Amritsar in Punjab. जो अमृतसर जो पंजाब में पड़ता है वहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. ही अरेस्टेड टू द लोकल लीडर लाला लाजपत राय एंड दे हैव बैंड द एंट्री ऑफ महात्मा गांधी इन दिल्ली. और उन्होंने महात्मा गांधी को दिल्ली में जाने से रोक दिया. द ब्रिटिशर्स हैड थॉट इफ दे विल बी अरेस्ट टू द लोकल लीडर्स एंड दे विल प्रिवेंट टू द एंट्री ऑफ महात्मा गांधी इन दिल्ली, देन द पीपल्स विल prevent their strike, prevent their hartal, and they will come back to their work. But they have not got the success in this action. यानी इस कार्य में उनको सफलता नहीं मिली. उन्हें लगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग स्ट्राइक तोड़ देंगे और अपने अपने कामों पर लौट जाएंगे. So to control the situations, to control the rallies, to control the strikes, the Britishers had fired on a peaceful procession on 10th April 1919. डेट याद रखिएगा, सीक्वेंस बैठा करके चलिएगा. ऑन 10th अप्रैल स्टोरी की तरह से अपने दिमाग में बैठाते रहिएगा बात. ये जो मैंने डेट बताया ये क्या था? स्टार्टिंग ऑफ द सत्याग्रह मोमेंट. ऑन 10th अप्रैल 1919 पुलिस हैड ओपन फायर ऑन ए पीसफुल प्रोसेसन. एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से लोग रैलियां कर रहे थे, यानी गवर्नमेंट के इस लॉ का इस विरोध कर रहे थे. लेकिन पुलिस ने क्या कर दिया? गोलियां चला दिया. सीइंग दिस द इंडियन पीपल्स हैड बिकेम एंग्री. वो क्रोधित हो गए, उनको बहुत गुस्सा आ गया. एंड दे हैव फॉरगॉटेड द पथ ऑफ द नॉन वायलेंस. और वो जो नॉन वायलेंस का गांधी ने रास्ता बताया था उसे ये क्या कर गए? भूल गए. दे बिगन टू अटैक ऑन द ब्रिटिश सिंबल लाइक पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस, बैंक्स. उन्होंने जितने ब्रिटिश जो राज्य के द्योतक थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रकार से द्योतक थे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस थी, बैंक्स थे, रेलवेज थी, ये सब अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया अपनी सुविधा के लिए, अपनी व्यापार की सुविधा के लिए. तो उस पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया. व्हेन द ब्रिटिशर्स हैड सॉ द सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल, दे हैव इम्पोज द मार्शल लॉ. उन्होंने क्या कर दिया? मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया. अब ये मार्शल लॉ क्या होता है अभी हम आपको बता रहे हैं. और इसकी कमान किसको दे दी गई? जनरल डायर को दी गई. मार्शल लॉ इज लाइक अ कर्फ्यू. मार्शल लॉ क्या होता है? एक प्रकार का कर्फ्यू होता है. व्हेन द कलेक्टिंग ऑफ द पीपल्स इज नॉट अलाउड एंड दे कुड नॉट talk to each others, they could not share their ideas each others, and they could not assembled in a place. वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते थे. तो ये मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया और इसकी कमान किसको दे दी गई? एक सीनियर ऑफिसर जनरल डायर को दी गई. अब जनरल डायर ने क्या किया कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, टेरर कायम करने के लिए, एक मॉरल विक्ट्री पाने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब आप पढ़ने जाएंगे, आगे जो पढ़ेंगे आप वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स पढ़ेंगे. तो इसमें जो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स को करने वाला था, अर्थात जो इसको कमांड लिया हुआ था, वो कौन था? जनरल डायर था. और उसने ऐसा क्यों किया? उसने बाद में इसे अलाउ किया कि टू गेट द मॉरल विक्ट्री एंड क्रिएट द टेरर एमंग द इंडियन पीपल्स. उसने बताया कि लोगों के मन में भय कायम करने के लिए और एक मॉरल विक्ट्री मीन्स
टू शो दैट द ब्रिटिशर्स आर सुपीरियर देन इंडियन, ये दिखाने के लिए कि उनके मन में ये बात आ जाए कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमसे क्या हैं, सुपीरियर हैं, इसलिए उसने ऐसा किया था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे जलियांवाला बाग के बारे में, जो कि एक भारतीय इतिहास में एक प्रकार से बहुत ही काले अक्षरों में अंकित है, अर्थात हमारे लिए बहुत अच्छा इसका इतिहास नहीं रहा है, क्योंकि इस दुर्घटना में बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बहुत से निर्दोष व्यक्ति अपना जान गंवाए, और यही सब जो एक्टिविटीज़ थी ब्रिटिशर्स की, उसने आखिरकार भारतीयों को एकजुट किया और फिर उन्होंने एकजुट होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ़ संघर्ष किया और क्रमवार जो मूवमेंट किया, क्रमवार जो स्ट्रगल किया, एक लंबी स्ट्रगल के बाद भारत को अंततोगत्वा 1947 में अर्थात स्वतंत्रता मिली, उनको इंडिपेंडेंस मिली। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। जलियांवाला बाग जिसको आप कहते हैं ऑन 13 अप्रैल 1919, ये जो डेट है इसे आप याद रखिएगा। ऑन 13 अप्रैल 1919 द जनरल डायर हैव इंटर्ड इनटू द अमृतसर एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में अमृतसर में जो कि लोकेटेड है, वहाँ पर वो गया। एंड एट दैट प्लेस द पीपल वेयर कलेक्टेड फॉर द टू पर्पज़। पहला पर्पज़ क्या था कि वहाँ पर दो लोग इकट्ठा हुए थे, वो इस पर्पज़ से इकट्ठा हुए थे। पहला था कि दे हैड कम देयर मीन्स जलियांवाला बाग टू ज्वाइन बैसाखी फेयर। वो लोग बैसाखी के मेले को ज्वाइन करने के लिए आए थे। मेला था तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। और दूसरा कुछ लोग क्या आए थे, समवेयर केम टू प्रोटेस्ट द रॉलेट एक्ट कह सकते हैं हम, और टू द एक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द इंडिया। तो दो बातें आती हैं कि इन जलियांवाला बाग मेनी पीपल्स वेयर गैदर्ड टू ज्वाइन द बैसाखी फेयर। एक्चुअली दोज पीपल्स वेयर अनअवेयर अबाउट द मार्शल लॉ, यानी उन्हें ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। एंड द सम पीपल्स वेयर कलेक्टेड देयर टू प्रोटेस्ट द रिप्रेसिव एक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द इंडियन, और वी में से टू अपोज द रॉलेट एक्ट। वो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहाँ पर आए थे, या हम कह सकते हैं कि जो लोग एक्शन ले रहे थे इंडियन पीपल्स के ऊपर, उसे अपोज करने के लिए आए थे। जनरल डायर हैड इंटर्ड इनटू द जलियांवाला बाग। द जलियांवाला बाग वाज अ इनक्लोज ग्राउंड, एक प्रकार से इनक्लोज ग्राउंड था। देयर वाज अ सिंगल एंट्री, एक सिंगल एंट्री थी, केवल एक ही गेट था। जैसे कि इस प्रकार का कोई ग्राउंड हो जिसमें ऐसे कोई हो और यहाँ से गेट की एंट्री हो। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसमें एक कुआं भी था। तो इस जनरल डायर ने क्या किया कि ही क्लोज द एंट्री गेट और एग्जिट पॉइंट, जो एग्जिट पॉइंट था जहाँ से बाहर निकलते थे लोग, उसको उसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। सो दैट द पीपल्स कुड नॉट गो आउटसाइड, ताकि लोग बाहर ना जा सके। एंड अलाउड
द पुलिस टू ओपन फायर ऑन द क्राउड। भीड़ के ऊपर उसने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि गोलियां चलाना शुरू कर दें। अब अंधाधुंध गोलियां चलने लगी, लोगों के पास भागने के कहीं रास्ते नहीं थे, तो कुछ लोग कुएं में कूद करके अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन एक के ऊपर एक कूदते चले गए। यू कैन इमेजिन व्हाट अ फियरफुल सिचुएशंस वाज एट दैट टाइम। उस समय कैसी भयानक स्थिति रही होगी। हाउ दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, कैसे लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए होंगे। सो दिस एक्शन ऑफ द जनरल डायर वाज ओनली to get the moral victory on the Indian peoples, or we may say to create the terror among the Indian peoples against the action of the Britishers। लोगों में ये भय हो जाए, ये डर हो जाए कि if they will raise the voice against the British rule, अगर वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाएंगे, then they will not be एक्सेप्टेबल बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे विल बी पनिश्ड। ये ब्रिटिश के द्वारा स्वीकार नहीं होगा और वो दंडित किए जाएंगे। टू द अगेंस्ट दिस एक्शन ऑफ द ब्रिटिश, द इंडियन पीपल्स हैव वंस अगेन अटैक्ड ऑन टू द पुलिस स्टेशन, बैंक, रेलवे ऑफिसर्स, एंड दे हैव आल्सो अटैक्ड ऑन द ब्रिटिशर्स। द अनदर एक्शंस टेकन बाय द ब्रिटिशर्स, एंड this time the more brutal actions had been adopted by the Britishers, and the Indian peoples were forced to rub their nose on the grounds। they were quarreled, उन्हें घसीट करके सामने लाया गया, उनको नाक जमीन पर रगड़वाई गई। मीन्स the Britishers had treated very badly with the Indian peoples। उन्होंने इंडियन के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उनको बहुत दंडित किया, बहुत प्रताड़ित किया। एंड द इंडियन पीपल्स वे आर आल्सो गिविंग देयर रिस्पॉन्सेस इन देयर ओन लैंग्वेज। उन्हीं की भाषा में इंडिया के लोग भी जवाब दे रहे थे। दे वे आर आल्सो अटैकिंग ऑन द पुलिस, बैंक्स। सच टाइप ऑफ द कंडीशंस वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द महात्मा गांधी। ये जो कंडीशंस बन गई थी महात्मा गांधी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। सो ही प्रिवेंट द रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट। उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट को क्या कर दिया, रोक दिया। एंड रियलाइज दैट टू अपोज द ब्रिटिश रूल, टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज, देयर इज ए नीड ऑफ द मोर ब्रॉड मूवमेंट्स, नेशन वाइड मूवमेंट। उन्हें रियलाइज हुआ कि एक नेशन वाइड मूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। एंड ही रियलाइज दैट दिस मूवमेंट is not possible until the Hindu and the Muslims will not come together, will not come closer। जब तक कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होंगे, जब तक दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव रीड अबाउट द रॉलेट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। In a next video, we will read about the Khilafat movement and the non-cooperation movement, which is very important chapter for your exams, which is very important topics for your exams. And dear students, you have to read to the every topics of this chapter very carefully. I have already told you that the many questions had been asked from these chapters, and in the board exams it is a great possibility, it is a huge possibility that some questions definitely will ask from these chapters, and if you will read it seriously, then you will be able to give the answer of the any questions. So dear students, thanks to all for watching the video. Thank you so much.